So, guys, today's topic is about attributes. We are not going to do much of it today. I promised you people that I'll be taking class. That's why I am taking this class. Okay. And because we have only very few people along with us, so I'll be just giving you an overview and more of a bird's eye view about what this particular lecture is going to be. Okay. And today, this lecture is going to, I'm going to repeat this lecture. Okay. This is not going to be only today, but since we have to, I promised you people that the class is going to be today, so that's why for the sake of the class I'm taking this. And all of you who are here, I hope you know studies are going wonderful. You people are preparing well. Is that so? Are you people studying hard? I don't know why, but today I'm finding your response very low. Is that we are, it's late in the evening, that's why you people are responding so low? Zakir, yes. Anayat, yes. Okay, good, good. All of you, good, good, good. Okay, okay, okay. So, guys, our syllabus was that in statistics we are not left with much of the lectures. We are left with attributes, theory of the attributes. Then we are left with, I think, set theory. We are left with one mathematical, what do we call that? Matrices. Yes, I think these are the only chapters. Is there anything else? Any other topic? Yeah, that matrices I talked about. Is there anything else that we are left with apart from this in statistics? Postpone? No, Zakir. I don't think that the exam is going to be postponed, but it is not going to be conducted on the date that they have like specified. Okay. Yeah, analytical geometry. Thank you, Nat. But I don't hope that the exam. I don't. I cannot see the exam being conducted on 15th or 20th. But I'm pretty sure with the kind of the, yeah, ending October, maybe ending October, not good, or maybe in the first week of November. So no, Zakir, I don't think the elections are a big problem. Okay, they are not a big problem because it is not a wholesome election. It is just going to be on the seats that are left vacant. So it is not a massive exercise. Okay, not a problem. But nevertheless, the code of conduct is going to enter. So the thing is that we are left with three, four topics only. As an I told me, okay, Sakshi is there. Let me admit Sakshi. Okay. So the thing that I was trying to tell you people is that we are left with three, four topics only. One of them I specified, an ad specified about analytical geometry. We are going to do that. Sets and this matrices, very important. I hope, and I'm sure about that you will definitely find one question on matrices. Okay, and set theory also, and then we are left with one topic. I think something. Can people tell me what other topic was? These are the three topics. We are going to do the attributes. Yeah, I know. Okay, so this is not much. What is the situation of the other subjects? What about the accounts? Because you people were very worried about the accounts. Are you people on the verge of completing accounts? And how many topics are left? Please let me know. Meanwhile, you people can share what you people think that should be added more in the class, like coming classes, because in the coming classes we are not left with much of the syllabus. And I thought, okay, 70%, no, not a problem. You people can let us know that what you want us to add in the classes, like, because I feel that syllabus is almost getting completed. This week we are going to complete the syllabus because we won't be able to left. If I'll be taking two or three classes of yours, we are done with the syllabus of the statistics. Okay, you people want to do MCQs, or you people want to do a revision? What? Add your inputs. Okay, tell me. Quick revision, good, and we can do that, not a problem. Others? Rishi, yeah, revision, okay, good. Zakir, you can also tell me. Sakshi, you also give your suggestion. Good evening, Sakshi.
Okay, oh, sorry, sorry, sir. I just read a wrong message up there. Anayat is writing and also MCQs. And okay, MCQs, I know this is very important and we should do, yeah, we'll be doing MCQs, no problem. Once his syllabus is completed, I feel then every day I'll be taking at least an MCQs. Rishi sir, still my questions are going wrong from economy, what will I do? Rishi, don't worry about that. If your Nath is writing, we can have marathon classes for one day on economics, 3 to 4 hours, it will be beneficial. And I have no problem, but I feel you can tell the specific topics that we need to stress upon, and if you people are finding problem in that. Okay. Zakir is writing, sir, need one lecture on full overview of the syllabus. Zakir, full overview of the syllabus, you meant to say that the entire quick revision only, na? No problem. Zakir, that won't be possible. I feel that to revise entire syllabus from the very first topic. But I feel what we people can do, okay, Nayat is writing indifference curve, especially not a problem in Nayat. Indifference curve is not a big problem. What do we have in indifference curve? We can do a quick revision right now also. What indifference curves are, you people know. Okay, let me know what indifference curves are based upon ordinal or cardinal utility analysis. Let me know. All of you, right? Fast. We do not have much to do today. I'm not going to do the attributes in depth today because there are very few people along with me. I have to anyways repeat. Sakshi, budgeting for Panchayat. Sakshi, I know you specified this in the earlier class as well that you wanted to do this budgeting. No problem. I'll definitely be taking this topic. Okay, don't worry. Okay, ordinal, wonderful. So you people know, I mean, the very basics of, I mean, who commented here like he's facing problem in economics? The questions are getting wrong. Rishi, Rishi, what exactly, what kind of questions you are not able to solve? I mean, what, which particular topic or chapter? And meanwhile, others, please answer. What is the slope of indifference curve called? Guys, slope of the indifference. What it is called? Tell me fast. Why I'm not able to find any answer from anybody? Is that you people don't know, or is that you are not there in the class? And if you don't know the answer, that's very bad. Can you people hear me? Hello, guys. Can you people hear me? What is happening? Anayat Salim. Okay. Margarita substitution. Rishi. Yes, sir. Sakshi. Margarita substitution. Okay. Why it is taking so much of the time for all of you people to answer? Welcome, Diksha. Okay. Yes. Good. Okay, Diksha, welcome. Now you are the part here. Yeah, marginal substitution. Now Rishi was telling me, Rishi, what is the problem that you're facing? In which particular topics you people are facing problem? Or we can do one thing, guys. I think you can let me know what topics you people are facing problem, or and then based we can revise those topics, and simultaneously also what we can do is that we can make MCQs of those topics. Okay, so that at the same time we can have a marathon class wherein I'll be telling you and revising those topics. Also, we'll be discussing the MCQs. Is that fine? Or you people have some other suggestion for me to follow? I can definitely incorporate that as well. Not a problem.
Inflation, growth, development, indifference curves. Rishi, I don't think if you're facing problem in indifference curves, that is a big problem then, because indifference curve is one particular topic that I think we discussed and spent a lot of time upon that. But in nevertheless, if you're actually facing any problem in that, we will revise indifference curves. No, no, no issues. Yeah, Rishi, you know them very well. Good, wonderful. Okay. Yeah, Salim, we can do MCQs. No, no, no problem. No problem. Okay, I'll give you a bird's eye view, then we'll see what to do. Guys, the topic of the today is attributes. Okay, so can you anybody of you tell me what production cost and efficiency? I missed that class. Okay, Sakshi, not a problem. We'll be doing that. Don't worry. Okay, guys. Okay, attribute we're talking about. Tell me, can anybody of you tell me what is the meaning of an attribute? I can give you a example. I'll say, okay, Rishi has a lot of attributes. Now give me Anati saying quality. Others also let me know. Tell me. Feature, good Salim. Yes. Try now. Tell me fast. Tell me, guys. Do we have only two people? Anayat, Sakshi saying characteristics. Okay. Rishi, jets are roaring. Rishi, where are jets are roaring? In your area. Okay, good. Here also. So is that some problem on the border? Are we good? Shayad here also. Okay. Okay. Let's fingers crossed. Hope that everything is good. Okay. Attribute, guys, is quality, characteristic. Like all of you people said, that's true. When we say attribute, that means quality. Zakir, pricing and the various forms of the market. Okay, Zakir, no problem, no issues. Okay. Yeah, I was telling attributes is the quality. When I say that Sakshi has an attribute, Zakir, has an attribute, correct, you say it's a quality or a characteristic of a person. एक बंदे की quality या characteristic उसके बीच में क्या है, कोई peculiar characteristic उसके बीच में क्या है, उसको हम attribute बोलते हैं. ठीक है, like it is written here, an attribute refers to the quality of a characteristic. Okay. सो दो चीज़ें हैं. जब हम एक रिसर्च में या स्टेटिस्टिक्स में जाते हैं, तो दो टाइप के डाटा होते हैं. एक डाटा जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं. क्वांटिफाई का मतलब जिसको हम मेज़र कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, आई गो टू अ शॉप एंड आई से कि मुझे 10 kg आलू दे दो. दैट मीन्स आई कैन क्वांटिफाई, मैं बता सकता हूँ, मेज़र कर सकता हूँ मुझे कितने आलू चाहिए. ठीक है, दैट इज़ क्वांटिफाइएबल डाटा. ओके. दूसरा डाटा क्या होता है रिसर्च में? एक डाटा वो होता है जिसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते. अब ऐसा डाटा क्या होता है? यस, होता है. फॉर एग्जाम्पल, ऋषि इज स्केयर्ड ऑफ जेट्स. ओके. सो कैन यू पीपल से कि ऋषि से पूछ सकते हो ऋषि कितना डरा है? कैन ही टेल हाउ, यू नो व्हाट कितना क्वांटिटी में ऋषि डरा है? ठीक है, ऋषि नहीं बता सकता. ये ज़्यादा से ज़्यादा ये बता सकता है कि कम डरा है या ज़्यादा डर रहा है. ही कैन नॉट क्वान्टिफाई दैट. सो दीज डाटा, ऑल दीज जो इस डोमेन में फॉल करते हैं, उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं. ओके. आपको समझ आ गया बेसिकली क्या मैं बताना चाहता हूँ? कोई भी रिसर्चर या किसी भी स्टेटिस्टिक्स में डाटा में हम लोग दो टाइप के डाटा होते हैं. एक जिसको हम क्वान्टिफाई कर सकते हैं, एक जिसको हम क्वान्टिफाई नहीं कर सकते. इन सिंपल वर्ड्स, एक जिसको हम मेजर कर सकते हैं, एक जिसको हम मेजर नहीं कर सकते. ओके. तो जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो तो एक नॉर्मल डाटा हो गया, जैसे हमने पढ़ा आगे, प्रोबेबिलिटी में पढ़ा हमने, वी कैन मेजर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग. और हम बट क्या हम हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हैं? हाउ हैप्पी आई एम, और हाउ हैप्पी यू आर, और कितना बोरिंग आपको ये लेक्चर लग रहा है,
या कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये हम मेजर नहीं कर सकते। ओके, ऐसे डाटा को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है देयरफॉर द एट्रीब्यूट नीड स्लाइटली डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट। क्योंकि देखिए, अब जिनको हम मेजर कर सकते हैं हम उनको वेरिएबल्स कहते हैं, और जिनको मेजर नहीं कर सकते उनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जांपल दिया है हैबिट ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, कोई कितना ज़्यादा स्मोकिंग करता है, ही कुड बी चेन स्मोकर बट यू कैन नॉट टेल। कितना कितना ड्रिंक करता है, यू कैन नॉट टेल। ओके, सो ये सब एग्जांपल किसकी हैं, ये सब एग्जांपल हैं गाइस हमारी एट्रीब्यूट्स की। गॉट इट? नेक्स्ट लेट मी टेक टू अनदर स्लाइड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आज इस लेक्चर को हम फिर से करेंगे, बट आई एम जस्ट टेकिंग इट एन ओवरव्यू टुडे बिकॉज वी हैव ओनली 7-8 पीपल अलोंग विद अस। ओके, या here we have. So this is an attribute refers to the quality or characteristic. ये तो है, this is the same slide I think. We didn't move to another slide. Yeah, it is. When it is not possible for the researcher to measure the magnitude of the data, जब researcher डाटा के मैग्नीट्यूड को मेजर नहीं कर सकता, ठीक है, ना कर पाए, उस केस में क्या होता है, रिसर्चर के पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो मैं ऋषि से पूछ सकता हूँ कि ऋषि वेदर ही इज स्केयर्ड और ही इज नॉट, तो ऋषि कैन टेल मी यस सर आई एम स्केयर्ड और आई एम नॉट। सो या तो वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट होगा या वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम ये बोलते हैं कि एक डाटा को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हम मेजर नहीं कर सकते, तो फिर उस डाटा को हम रिसर्च में लेंगे कैसे? तो ऐसे डाटा को, एट्रीब्यूट्स को हम कैसे मेजर करते हैं या कैसे हम लेते हैं रिसर्च में, वो होता है ईदर विद द प्रेजेंस ऑफ डाटा और एब्सेंस ऑफ डाटा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर रिसर्चर हूँ और मैं एट्रीब्यूट्स, किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कश्मीर के सेब लाल हैं या नहीं है। रेडनेस इज एट्रीब्यूट, रेडनेस क्या है, एट्रीब्यूट है, और उसको मेजर करने का क्या तरीका है, एब्सेंस और प्रेजेंस। तो मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। ठीक है, मैं ऋषि के पास जाऊंगा, पूछूंगा कि वहां पे सेब, आपके जो सेब हैं वो लाल हैं या नहीं है, तो ऋषि क्या बोलेगा, इधर इट इज यस और नो। ऋषि, ओके ऋषि, अब नेक्स्ट टाइम आप आओगे जम्मू तो आपने सेब लेके आने हैं। ठीक है, ओके गुड। सो ये आपको समझ आ गया कैसे हम एट्रीब्यूट्स को वो करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स को क्वांटिफाई करते हैं। अब जैसे हैप्पीनेस को, मैं हैप्पीनेस पे आपसे ऐसे पूछता हूँ वेदर यू आर हैप्पी और नॉट, सो यू विल बी टेलिंग मी इफ यू आर हैप्पी आप एक ग्रुप में आ जाओगे, इफ यू आर अनहैप्पी आप दूसरे ग्रुप में आ जाओगे। ठीक है, उसी तरह क्यूटनेस, आर यू क्यूट और नॉट, एंड इफ यू आर क्यूट, कितने क्यूट हो यू कैन नॉट टेल, सो यू विल फॉल ओनली इनटू टू डोमेन्स, वन द प्रेजेंस ऑफ द क्यूटनेस और टू द एब्सेंस ऑफ द क्यूटनेस। ओके, जैसे इसमें लिखा है इन सच केसेस द रिसर्चर कैन ओनली स्टडी ईदर द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी इन अ ग्रुप, फेयरनेस, ऑनेस्टी, डम्बनेस एटसेट्रा। यहाँ तक किस किस को समझ आ गया, किसी को प्रॉब्लम? आई कैन रिपीट, नो प्रॉब्लम, बिकॉज वी हैव एम्पल ऑफ द टाइम। एनीवेज वी हैव टू रिपीट दिस लेक्चर, आई टोल्ड यू, फिर भी हमें ये रिपीट करना ही है। अनायत एंड साक्षी, नो, आप क्या समझ नहीं आया है? दीक्षा क्लियर है, गुड। ओके, दीक्षा, अनायत इज सेइंग क्लियर, गुड। एंड साक्षी व्हाट अबाउट यू, आपको समझ आ गया बच्चे? क्लियर, ओके गुड, वंडरफुल वंडरफुल। देयर इजंट एनी डिफिकल्ट इसमें कुछ, बट दैट्स गुड। Okay. We have this slide in front of you where it is written that data in which the quantitative measurement of the magnitude is not possible and in which only the presence or the absence of the attribute can be studied is called statistics of the attribute। ये आपको समझ आ गया जो मैंने बता दिया, कि मतलब वैसा डाटा जिनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, एट्रीब्यूट से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है जाकिर कि एट द फीचर्स ऑफ द एट्रीब्यूट क्वांटिफाइबल, ठीक है, क्वालिटेटिव। आई टेल यू, अब ये दो चीज़ें हैं। इन एट्रीब्यूट का जो फीचर है इट्स नॉट क्वांटिटेटिव, इट्स क्वालिटेटिव, क्योंकि ये क्वालिटी देखता है। समझ आया आपको? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द एट्रीब्यूट, क्वांटिफाइबल, क्वालिटेटिव, ठीक है,
या फिर दो तीन और दे दी जाए, तो योर आंसर शुड बी क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है गाइस, व्हाट इट इज क्वालिटेटिव डाटा। दो टाइप के डाटा होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड अदर इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वो होता है जिसको हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ क्वालिटी देखते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द क्वालिटी। गॉट इट गाइस, समझ आया आप लोगों को? प्लीज टेल मी। यस, okay. Now tell me, what is a feature of the attributes, qualitative or quantitative? Write down. Qualitative. Good, good. All of you, all of you. Good, good. Wonderful, wonderful. Next slide, we'll move on to classification of the data. Okay. Now, then we have the classification. How do we classify this data? Okay. Then, you know, it is classification of the attributes is done on the basis of presence and absence of the data. जैसे मैंने आपको बताया कि हम हमारे पास एक पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन हम स्टैटिस्टिक्स में किसको बोलते हैं? कि जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। अगर मुझे अकाउंट असिस्टेंट पंचायत के बच्चों को पढ़ाना है, तो जितने भी बच्चे ये पेपर दे रहे हैं वो मेरा पॉपुलेशन हो गया स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। तो उस मैं जब बात कर रहा हूँ कि जो मेरी पॉपुलेशन है, उसमें से मैं किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की बात करूँ, ये बोल सकता हूँ कि जितने भी अकाउंट असिस्टेंट पंचायत के बच्चे हैं, वो जो मेरे पॉपुलेशन है उसमें से सम पीपल, एक एट्रीब्यूट ले लेता हूँ, कोई भी एट्रीब्यूट क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएट। ओके, no, graduate won't be an attribute, graduate would be a variable, ठीक है, we can measure it. I would say fairness. Okay, let's take fairness or intelligence. Some people say that intelligence can be measured, but no, that is not। हम IQ वाला अलग सिस्टम रख लें तो it cannot be, ठीक है। तो मैं कहूँ कि you know some of people would be intelligent, others would not be, ठीक है। तो जब भी हम किसी एक एट्रीब्यूट को लेके क्लासिफिकेशन करें, ठीक है, तो उसमें क्या बनेंगे, दो ग्रुप बनेंगे गाइस। वन वुड बी प्रेजेंट ग्रुप एंड अदर वुड बी एब्सेंट ग्रुप। प्रेजेंट ग्रुप और एब्सेंट ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंट ग्रुप वो हो गया जिसके बीच में वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट होगा, और ऑटोमेटिकली दूसरा ग्रुप क्या होगा, जिसके बीच में वो एट्रीब्यूट एब्सेंट होगा। आपको समझ आया? मैं रिपीट करूं? आई कैन रिपीट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। गाइस, अगर आपको समझ नहीं आया, आई कैन रिपीट, टेल मी। आपको समझ आ गया? नाइस, गुड। अदर्स आल्सो लेट मी नो। बाकी वालों को समझ आया? प्लीज बताएं मुझे। क्लियर, गुड, गुड। साक्षी, रितु, दीक्षा, ओके, गुड, ठीक है। तो दो, जब भी एक एट्रीब्यूट होगा तो उसके दो ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। कोई भी एक एट्रीब्यूट अगर हम लेके चलते हैं, उसके दो ग्रुप बनेंगे, एक ग्रुप प्रेजेंट ग्रुप और एक एब्सेंट ग्रुप, ठीक है। अब जब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट होंगे, अब मैं सिंपल सी एग्जांपल बात मतलब लूं। अगर मैं कहूं कि एक एट्रीब्यूट फेयरनेस है और एक एट्रीब्यूट इंटेलिजेंट है, दैट मीन्स हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो फेयर भी है और इंटेलिजेंट भी है, लाइक वी से इन ब्यूटी विद ब्रेन्स। ओके, तो अगर हम इस तरह से बात करें तो दो एट्रीब्यूट हो गए। अब दो एट्रीब्यूट कितने ग्रुप्स बनेंगे? आगे दो नहीं बन सकते अब, क्योंकि पहले तो अगर हम सिर्फ फेयरनेस की बात कर रहे थे तो दो लोग हो सकते थे, एक जो फेयर है, एक जो नहीं है, ठीक है। बट अब एट्रीब्यूट दो हैं, फेयरनेस भी है और इंटेलिजेंस भी है। तो अब कितने ग्रुप्स बनेंगे? अब ज्यादा ग्रुप बनेंगे, दो नहीं बन सकते हैं। यू कैन नॉट से फोर ऑल्सो, ठीक है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रुप बनेगा हमारा जो इंटेलिजेंट होगा,
सेकेंड ग्रुप होगा हमारा जो इंटेलिजेंट नहीं होगा। थर्ड ग्रुप बनेगा हमारा जो फेयर होगा। फोर्थ ग्रुप बनेगा हमारा कौन सा, जो फेयर नहीं होगा। ठीक है। फिफ्थ ग्रुप बनेगा हमारा जो इंटेलिजेंट भी है और फेयर भी है। सिक्स ग्रुप कौन सा बनेगा हमारा, जो इंटेलिजेंट नहीं है बट फेयर है। सेवेंथ ग्रुप कौन सा बनेगा हमारा, जो इंटेलिजेंट भी नहीं है, जो फेयर भी नहीं है। आपको समझ आया? क्या आप लोगों को समझ आया किस तरह से अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट होंगे तो फिर हमारी ज्यादा ग्रुप्स, ज्यादा क्लासेस बनेंगी। ओके, ओके, गुड। यस, किसी को इसमें प्रॉब्लम? किसी को इसमें प्रॉब्लम? अगर कोई एक है तो आई विल रिपीट, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई इशू नहीं है। ओके, ना, सबको समझ आ गया, गुड। तो कैसे करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ द एट्रीब्यूट्स? ठीक है, इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द डाटा। दो ग्रुप बनते हैं, प्रेजेंट और एब्सेंट वाला। प्रेजेंट वाला वो ग्रुप जिसके बीच में वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट है, एब्सेंट वाला वो ग्रुप जिसके बीच में वो एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है। अगर एक एट्रीब्यूट की बात करें, दो क्लासेस बनेंगी, मतलब दो ग्रुप्स बनेंगे। और अगर एक से ज्यादा है तो फिर ज्यादा ग्रुप्स बनेंगे। ओके, विल मूव फर्दर गाइस, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ है क्लास, दो चीजें हैं, क्लासिफिकेशन बाय डाइकोटोमी और क्लासिफिकेशन बाय मैनीफोल्ड। ठीक है, आपको इसमें पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन बाय डाइकोटोमी। डाइकोटोमी का मतलब किसी को पता है यहाँ पर? इज देयर एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डाइकोटोमी? ग्रुपिंग इनटू टू? नो साक्षी, यू आर क्लोज बट नॉट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ द डाइकोटोमी। आपने मतलब बता दिया, आपने पूरे इसका जवाब दे दिया, क्लासिफिकेशन बाय डाइकोटोमी। नो जाकिर, ये मतलब नहीं होता, दो का मतलब नहीं होता डाइकोटोमी। डाइकोटोमी का लिटरल मतलब पूछ रहा हूँ आपसे। ट्राई ट्राई, लेट मी नो। जाकिर, नो दैट्स नॉट टू। दीक्षा इज सेइंग डिफरेंस, नो दीक्षा, दैट्स नॉट डिफरेंस। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नो उमंग, दैट्स नॉट वन डिवाइडेड इनटू टू, नो नो। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि यू नो गांधी एंड वायलेंस आर डाइकोटोमस टू ईच अदर। गांधी एंड वायलेंस, दे आर डाइकोटोमस टू ईच अदर। बताओ मुझे। डिस्ट्रीब्यूशन टू करेक्टर, नो जाकिर। वेरिएबल्स ऋषि, नो। मैंने को एग्जांपल दिया आपको कि गान या ना, ऑपोजिट। एग्जैक्टली, गुड, वंडरफुल। गाइस, डाइकोटोमी का मतलब क्या होता है? डाइकोटोमस का मतलब होता है कि ऑपोजिट। ओके, लाइक यू नो, मैंने जैसे बताया, गांधी एंड वायलेंस, दे आर डाइकोटोमस टू ईच अदर। बिकॉज गांधी ने क्या बात की पूरी लाइफ में, किसकी बात की? वायलेंस की नॉन वायलेंस की? या गुड ऋषि, ऑपोजिट। गांधी क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉन वायलेंस, यस। तो इसीलिए व्हेन आई से गांधी एंड वायलेंस, दे आर डाइकोटोमस टू ईच अदर, दैट मींस दे आर डिफरेंट, कंप्लीटली ऑपोजिट। आया समझ डाइकोटोमी का मतलब? बताओ बच्चों, आपको समझ आ गया? गुड दीक्षा, ऋषि, साक्षी, आप समझ आ गया? मैं आपको क्यों इसका मतलब समझा रहा हूँ। जब ये आपको मतलब पता चल जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। देखिए, क्लासिफिकेशन बाय डाइकोटोमी तब होती है जब हमारे पास एक वेरिएबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल, एक पॉपुलेशन है मेरी, उस पॉपुलेशन में मैं एक वेरिएबल थ्रो करता, एक एट्रीब्यूट के हिसाब से मैं मेजर करता हूँ। मेजर क्या है? जैसे आपका अकाउंट सिस्टम पंचायत का ग्रुप है, मैं इसमें एक एट्रीब्यूट के हिसाब से फॉर एग्जांपल 6 फीट टॉल। ओके, तो दिस इज एन एट्रीब्यूट 6 फीट टॉल। इसको मैं, नो दैट दैट इज नॉट गोइंग टू बी एट्रीब्यूट, अगेन अ वेरिएबल हम मेजर कर सकते हैं। कोई एक एट्रीब्यूट ले लेते हैं, इनोसेंस।
अगर मैं इनोसेंस का एक एट्रीब्यूट लूँ कि कौन इनोसेंट है कौन नहीं है, तो क्या होगा, ये पूरा ग्रुप दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक हिस्सा जो इनोसेंट होगा, एक हिस्सा जो इनोसेंट नहीं होगा। एट्रीब्यूट एक ही है, लेकिन आप देखो ये दोनों ग्रुप, अगर मैं ए ग्रुप को ए से मेजर करूं या ए से रिप्रेजेंट करूं और दूसरे ग्रुप को बी से रिप्रेजेंट करूं, तो आप लोगों को क्या लग रहा है इस दो ग्रुप्स के बीच में क्या इंपॉर्टेंट फीचर क्या है दोनों के रिलेशन में, क्या कोई बता सकता है मुझे, हाउ दे आर को रिलेटेड? बताओ बताओ, मुझे ट्राई करो। जाकिर बताओ बच्चे, साक्षी आप भी। नायत, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक पॉपुलेशन है, आप एक अकाउंट असिस्टेंट पंचायत का ग्रुप है, तो मैं उसमें ये बोलता हूँ कि एक एट्रीब्यूट के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एट्रीब्यूट क्या है, इनोसेंस का। ओके, तो जब हम इनोसेंस की बात करते हैं, तो ये ग्रुप दो हिस्सों में डिवाइड होगा, वन हु आर इनोसेंट एंड वन हु आर नॉट। ऑब्वियसली ना, हम ऐसे ही क्लासिफिकेशन करेंगे, वन ग्रुप जिसके बीच में ये एट्रीब्यूट प्रेजेंट होगा और अदर ग्रुप जिसके बीच में ये एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, एंड व्हेन द एट्रीब्यूट इज इनोसेंट, तो एक ग्रुप होगा जो इनोसेंट है, एक ग्रुप होगा जो इनोसेंट नहीं है। ठीक है, तो ओके, हाँ, तो नाउ डिफरेंट क्लासेस बन जाएंगी। साक्षी नहीं, साक्षी मेरा क्वेश्चन यही है कि ये दो ग्रुप्स कैसे कोरिलेटेड है, मुझे ये बताओ, इन दो ग्रुप्स के बीच में क्या रिलेशन है? टेल मी, कोई तुक्का ही मारो यार, कोई चक्कर नहीं, गो फॉर अ फ्लूक। बोथ आर रिलेटेड टू पंचायत असिस्टेंट। ओके साक्षी, गुड अटेम्प्ट, वंडरफुल, अप्रिशिएबल। अदर्स आल्सो, ऋषि इनोसेंस, ओके, लगाओ थोड़ा दिमाग लगाओ, ग्रिल योर माइंड। बताओ बताओ प्लीज, ट्राई ट्राई। आप फिर से ट्राई कर सकते हैं साक्षी, ऋषि, बाकी सब भी मीनवाइल ट्राई करो। Absence and presence. Zakir, you are very close. We are comparing on the same attribute and I. Okay. Or they are opposite to each other. Exactly, Sakshi. Good. That's what I wanted to hear. देखो, अब क्या है, ये दो ग्रुप्स डाइकोटोमस है टू ईच अदर। ए इज डाइकोटोमस टू बी, बिकॉज क्या है, एक वायलेंस है और एक नॉन वायलेंस है, एक में इनोसेंस है और एक में इनोसेंस नहीं है। आपको समझ आया क्लासिफिकेशन बाय डाइकोटोमी? या आप मुझे रिपीट करना, मैं रिपीट करूं? टेल मी गाइस, क्या समझ नहीं आया ऋषि? गुड जाकिर, क्लियर, बाकी वालों को? ओके सलीम, सलीम मैं क्या बोल रहा था, हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन बाय डाइकोटोमी। ओके, क्लासिफिकेशन बाय डाइकोटोमी में पहले आपको डाइकोटोमी का मतलब पता होना चाहिए। ओके, सो जब डाइकोटोमी का मतलब होता है हमारा, ऑल ऑफ ये सब बच्चे बताएंगे डाइकोटोमी का मतलब क्या होता है। चलो सलीम को बताओ। ऋतु आप जवाब नहीं दे रहे बच्चे, आप बताओ, गुड साक्षी, ऋतु, दीक्षा, नायत, सब बताओ
क्या है डाइकोटमी का मतलब? ऑपोजिट, एग्जैक्टली, यस ऋषि, ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके सलीम, यस। सो अगर मैं बोलता हूँ, या गुड सलीम, यू नीड टू थैंक यू ईच अदर, ऑल ऑफ यू पीपल। डाइकोटमी का मतलब होता है ऑपोजिट। अगर मैं स्पेसिफिक एग्जांपल दूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कश्मीर एंड राजस्थान दे आर डाइकोटमस। नॉट एग्जैक्टली अ गुड एग्जांपल बाय मी, बट अगेन जैसे मैं ये बता सकता हूँ कि गांधी एंड वायलेंस दे आर डाइकोटमस, दैट मीन्स ऑपोजिट टू ईच अदर। और स्पेसिफिक बताऊं तो कंट्रास्ट, एक दूसरे कंप्लीट कंट्रास्ट। ओके, तो उसी तरह जो क्लासिफिकेशन बाय डाइकोटमी हम पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी ग्रुप की हम स्टडी कर रहे हैं, वो स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ एन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है? मैंने कोई एग्जांपल लिया, कोई क्वालिटी ले ली, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था इनोसेंस का। तो मैं बात कर रहा हूँ कि एक ग्रुप में क्या इनोसेंस के हिसाब से अगर हम, या सलीम ब्लैक एंड वाइट, दैट वुड बी रेसिस्ट, मैं वैसा नहीं लूंगा। ओके, तो अगर मैं बात करूँ इनोसेंस की या हैप्पीनेस की बात करूँ, तो ग्रुप कैसे डिवाइड हो जाएगा? एक वो कुछ, एक ग्रुप वो होगा जिसमें वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट होगा, और एक ग्रुप वो होगा जिसमें वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, एक इनोसेंट होगा, एक जिसमें इनोसेंस नहीं होगी। तो मेरा क्वेश्चन ये था, जिसका साक्षी ने जवाब दिया कि ये ग्रुप कैसे रिलेटेड है? दीज ग्रुप्स आर डाइकोटोमस टू ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर, because there is one attribute and this attribute is dividing the group completely dichotomous to each other. तो ऐसी क्लासिफिकेशन जिसमें एक एट्रीब्यूट हो, उस एट्रीब्यूट, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? उस क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बाय डाइकोटमी। समझ आ गया सलीम? और बाकी वाले भी? यस सलीम, यू टेल मी, बच्चे आपको समझ आ गया? यस, गुड। अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो तो फिर क्या होगा? हाँ, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो तो फिर क्या होगा? फिर वो क्लासिफिकेशन बाय मैनीफोल्ड होगा। गुड जाकिर, अनायत, दीक्षा, ऋषि, सब बताओ। गुड। अब आपको समझ आ गया? जब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट होगा, उस क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन बाय मैनीफोल्ड। इसमें किसी को प्रॉब्लम यहां तक? दीक्षा रिपीट, ओके। दीक्षा बच्चे, जब एक एट्रीब्यूट हम ले रहे हैं तो हमने बताया कि उस एट्रीब्यूट की वजह से क्या हो रहा है? ग्रुप दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, और वो ग्रुप डाइकोटोमस है, मतलब डाइकोटोमी, क्लासिफिकेशन बाय डाइकोटोमी। बट जब एट्रीब्यूट एक से ज्यादा होंगे, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि इनोसेंट एज वेल एज हैप्पी, वो दो वो होंगे, इस केस में क्या होगा? इस केस में ग्रुप डाइकोटोमस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इस केस में ग्रुप क्या होगा, किस तरह से डिवाइड होगा? एक वो बच्चे होंगे जो इनोसेंट होंगे, एक वो बच्चे होंगे जो इनोसेंट नहीं होंगे, एक वो बच्चे होंगे जो हैप्पी है, एक वो बच्चे होंगे जो अनहैप्पी है, कुछ वो बच्चे होंगे जो हैप्पी हैं बट इनोसेंट है, और कुछ वो बच्चे होंगे जो हैप्पी नहीं है बट इनोसेंट है। समझ आ रहे? इस तरह से काफी ज्यादा क्लासिफिकेशन होगी जो कि डाइकोटोमस नहीं होगी। इस क्लासिफिकेशन को, जिसमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो, उसे बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन बाय, ऑल ऑफ यू राइट व्हाट? क्लासिफिकेशन बाय, राइट राइट फास्ट। मैनीफोल्ड, गुड। दीक्षा आप भी लिखो बच्चे। अब समझ आएगा दीक्षा आपको? या, गुड। आगे चलते हैं। नोटेशन, नोशन एंड टर्मिनोलॉजी। ओके, अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया
कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो ग्रुप्स बन जाएंगे, एक ग्रुप जिसमें वो प्रेजेंट होगा, दूसरा ग्रुप जिसमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो अब ये कंफ्यूजन हटाने के लिए ना हमारे पास नोशन और टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसे इसमें लिखा है हमने कि सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्लासेस। हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं डिफरेंट क्लासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्लासेस मीन्स ग्रुप। ओके, तो अब क्या है, इसमें कैपिटल लेटर्स हैं ए बी और सी, ये वो रिप्रेजेंट करते हैं जिसके बीच में हमारे एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं बात इनोसेंस की बात कर रहे थे, तो ग्रुप एक एट्रीब्यूट लेते हैं, उससे ग्रुप दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक जिसमें जो इनोसेंट है, एक जो इनोसेंट नहीं है। अब जो इनोसेंट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ए से। क्यों? बिकॉज ए रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंस ऑफ द एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट हमने इनोसेंस लिया, तो जिसमें इनोसेंस प्रेजेंट होगी उस ग्रुप को हम ए से डिनोट करेंगे। अब जिसमें नहीं होगा, ये तो डाइकोटोमस है ना, ये तो एक से कर एक अगर एट्रीब्यूट होगा तो क्लासिफिकेशन बाय डाइकोटोमी होगी। तो अब इसका कंप्लीटली डाइकोटोमस जो ऑपोजिट ग्रुप बी जो दूसरा होगा, वो किससे डिनोट करेंगे हम? क्या कोई बता सकता है मुझे? बताओ। इफ ए डिनोट्स अ ग्रुप जिसमें एट्रीब्यूट प्रेजेंट है, तो दूसरा ग्रुप जिसके बीच में एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम क्या किससे डिनोट करेंगे? गुड साक्षी, अल्फा। गुड। नो सलीम, इट्स नॉट स्मॉल ए, इट्स बेसिकली अल्फा। ओके, मैंने यहाँ पर ग्रीक लेटर एट द रेट लिखा है, ठीक है, ये गलत है, इट्स बेसिकली अल्फा। आई वॉजंट एबल टू राइट हेयर, तो इसीलिए मैंने लिखा है। तो आपको समझ आ गया, उसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे। ओके, और फॉर एग्जाम्पल अगर इसी तरह दूसरा लेते हैं, ठीक है, जिसको हम दो एट्रीब्यूट है, अब ए का तो ले लिया, अब एक दूसरा ग्रुप है जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, कोई एट्रीब्यूट है जो उसमें प्रेजेंट है बी, ठीक है, तो उसका कंप्लीट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? उसका कंप्लीट ऑपोजिट जिसमें वो एट्रीब्यूट नहीं है वो क्या होगा बच्चे? बीटा। गुड। गुड दीक्षा, गुड साक्षी, गुड ऋषि, बीटा। ओके, सलीम बच्चे आपको समझ आया? सलीम बच्चे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको समझ आ गया? और बाकी वाले भी बताओ मुझे, सबको समझ आया? उमंग, आपको समझ आया? गुड। गुड सलीम, गुड सलीम। इसी तरह से अगर तीसरा ग्रुप होगा सी, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे प्रेजेंट वाला सी, और उसका कंप्लीटली कंप्लीटली ऑपोजिट क्या होगा? गामा। या गुड। गुड। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अच्छा, अब मुझे बताओ। नो, आज हम ज़्यादा नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था क्लास से, क्योंकि आज बच्चे बड़े कम हैं, ये हमें लेक्चर फिर से रिपीट करना है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको सिंस सुबह प्रॉमिस किया था कि हम ये क्लास लेंगे आज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वॉज अ बिग प्रॉब्लम, बट नाउ आई एम डन विद इट, तो हमने कर लिया है, ठीक है। तो अभी तो नाउ इट इज़ गुड, आई कैन सी हियर। तो मीनवाइल आप लोग अपना सारी तैयारी कीजिए, ठीक है। आप लोगों को मैंने एट्रीब्यूट्स का जो बेसिक है वो बता दिया है। नेक्स्ट 10-15 मिनट की क्लास में हम, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ये एट्रीब्यूट्स ख़त्म हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। फिर कुछ टॉपिक्स हैं हमारे इकोनॉमिक्स के जो पीपल हाईलाइटेड, जैसे प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। फिर साक्षी ने बताया बजटिंग है एक टॉपिक, ठीक है। और प्रोडक्शन कॉस्ट है एक टॉपिक। इकोनॉमिक्स के हमारे एक दो टॉपिक रहते हैं। स्टैटिस्टिक्स हमारा ज़्यादा नहीं है कुछ। एक क्लास विशाल सर लेंगे आपकी, जिसमें वो आपको मेट्रिसेस और सेट्स पढ़ाएंगे, ओके। तो वो आपका कवर हो जाएगा, तो देन आई थिंक यू आर डन विद द स्टैटिस्टिक्स। पीछे कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा, पर इकोनॉमिक्स के हैं, उसके लिए हमें
2-3 क्लासेस चाहिए होंगी, वो हम करेंगे, ठीक है। स्पेशली प्राइसिंग एंड द मार्केट स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमारा परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, फिर डंपिंग क्या होती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है। ये 3-4 हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसमें से जो टॉपिक्स हैं वो हम कर लेंगे, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता दो। सलीम, ऋषि, अनायत। In the end, Rishi is saying, in the end, share your strategy how to get maximum numbers in exam. Please sir, याद नहीं रहता है, भूल जाता हूँ। ऋषि, there is no strategy। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको MCQ सॉल्व करना है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, इफ़ गिवन अ टाइम, अगर आपको टाइम ना हो, मतलब अगर आपके पास टाइम की कमी हो और आपको टॉपिक कवर करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि उसके MCQ सॉल्व कीजिए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर आता ही नहीं होगा टॉपिक, तो MCQ से कैसे सॉल्व करेंगे? गो एंड गूगल MCQs उसके ऊपर। जब आप MCQs के हिसाब से पढ़ेंगे ना, फॉर एग्जांपल मैं आपसे दूं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आइडियल फॉर्म ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली या डुओपोली, तो आपको पता नहीं है इसका आंसर, तो यू गो एंड गूगल दैट क्वेश्चन। उसकी एक्सप्लेनेशन जब देखोगे ना, तो आपको पूरे के पूरे चारों का पता चल जाएगा, ठीक है, आपको समझ आई? इसलिए MCQ से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, हम लोग पता क्या करते हैं, जब मैं MCQs की बात करता हूँ तो आप लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे क्या क्या करते हैं कि रोज के रोज MCQs अलग अलग सॉल्व कर रहे होते हैं। नो, दैट इज नॉट द राइट वे टू सॉल्व MCQs। आप 1000 MCQ सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन 1000 को प्रिंट आउट लेके जहाँ कहीं सॉफ्ट कॉपी सेव रखें। क्योंकि एक चीज जो ना, जैसे कोट है बड़ा फेमस सा, इट्स बेटर टू रीड वन बुक 100 टाइम्स इंस्टेड ऑफ रीडिंग 100 बुक्स वन टाइम। ओके, अब एक बुक को अब इसको हर बंदा अलग अलग वो लेता है कॉनोटेशन। कुछ लोग इसको इसी कोट को उल्टा लेते हैं, इट्स बेटर टू रीड 100 बुक्स वन टाइम। बट एग्जाम परस्पेक्टिव से मुझे ये लगता है कि आप उन 1000 MCQs को अगर 10 बार सॉल्व करेंगे ना, तो आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ट्राई टू सॉल्व सेम MCQs अगेन एंड अगेन। और MCQ सॉल्व करने का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि आपको सही आंसर पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक UPSC का प्रीलिम्स का पेपर डाला, उसमें ठीक है, IAS का पेपर था इस बार का प्री का। जब मैं उसे दे रहा था तो मैंने देखा कि ये हमने क्लास में पढ़ा है, उसमें टिक भी लगी है सेकंड के ऊपर, राइट आंसर इज 2, यस आई नो। बट मैंने आपको सिर्फ आंसर के लिए नहीं बताया, आपको पता होना चाहिए कि बाकी दो वाले ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको सिर्फ आंसर नहीं देना, ठीक है ना। तो इसलिए टॉपिक्स को इस तरह से पढ़े, MCQs को इस तरह से पढ़े कि आपको 4 ऑप्शंस में से सिर्फ आंसर निकालना नहीं, पता होना चाहिए कि ये क्यों है। उस तरह से आपके टॉपिक क्लियर होंगे। समझ आ गई ऋषि? यस, ऋषि उसका आंसर सेकंड ही था। मैं अगर आपको अभी यहाँ बता दूं उसके बाकी ऑप्शंस क्या थे, 1 मिनट रुकिए आप, लेट मी ओपन दैट ऑन माई मोबाइल फोन। सो बच्चे, आप MCQ जितने हो सकते हैं उतने सॉल्व कीजिए और उनको बार बार सॉल्व कीजिए। आप सब ने टेस्ट सीरीज ली है? आप सब टेस्ट सीरीज में हैं, ये बताएं जरा मुझे। यस, यस, ओके ना। आप सब एक काम कीजिए कि उस टेस्ट सीरीज में उसके 1200 क्वेश्चन हैं, कम से कम एक बार वो टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व कीजिएगा। मैं तो आपको कहूंगा अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं 4-5 बार ही सॉल्व करता उस टेस्ट सीरीज को, क्योंकि 1200 क्वेश्चन बहुत होता है और उसमें पूरा सिलेबस कवर्ड है। ओके, उसको 2-3 बार ही सॉल्व करके अपना जितना भी आपका रिवीजन है उससे रिवीजन कीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा।
कोई आंसर कम आते हैं, कम स्कोर आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई टू सॉल्व दैट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। ओके, सो क्वेश्चन वाज, अगर आरबीआई, जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखा वो अपने फोन पे व्हाट्सएप पे देख सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप में डाला है। इफ द आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, ओके गुड ऋषि, क्वेश्चन ये है कि इफ आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी हमने पढ़ा था, मैंने आपको जब फिस्कल पॉलिसी पढ़ाई थी, ये वहीं से क्वेश्चन है, ये सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी से है, बट उसमें आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर आरबीआई एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, सबसे पहले होती कि आपको पता होना चाहिए, ये वो है जब आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू, वो क्या नहीं करेगा, ठीक है। पहला है कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर रेशियो को वो कम करेगा। अब एसएलआर रेशियो को कम करने का मतलब ये होता है कि एसएलआर रेशियो बेसिकली होती क्या है बच्चों, वो रेशियो, वो पैसा जो बैंक मैंडेटरली अपने पास रखता है, ठीक है, और उसको लोन नहीं दे सकता, जिसमें जिसका परसेंटेज 27-23 ऐसे कुछ होता है, अभी एट प्रेजेंट क्या है आई डोंट नो, बट इतना कुछ है, ठीक है। अगर वो आरबीआई उसको कम करता है, दैट मीन्स बैंक के पास ज्यादा पैसा है लोन देने के लिए, ओके, या 18%, गुड, ठीक है। अगर उसको कम करता है दैट मीन्स बैंक के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा लोन देने के लिए, ठीक है। एक ये, दूसरा इंक्रीज द एमएसएफ, ठीक है। और पहला वाला तो करना चाहिए, है ना, नॉट डू वाला तो सवाल ही है। कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, बैंक रेट कम करेगा और रेपो रेट कम करेगा, ऑब्वियसली इससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, बट द क्वेश्चन इज व्हाट इट वुड नॉट डू, इट वुड डेफिनेटली नॉट इंक्रीज द एमएसएफ, वो बी आंसर है। आई नो आपको बोरिंग लग रहा होगा, बट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। सो इसी तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी, यू ऑल विल बी थ्रू, आई नो यू पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी सिंसियर, ठीक है, एंड आई एम श्योर आप लोगों का ज़रूर होगा। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, प्रिपेयर करें, तैयारी करें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको ख़त्म करेंगे एट्रीब्यूट्स को, एंड माई ब्लेसिंग्स आर विद ऑल ऑफ यू पीपल आर वंडरफुल, एंड हैव कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन योर सेल्फ, रोज़ सुबह उठ के तैयारी कीजिए, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल ऑफ यू वुड क्रैक, आई नो। इस ग्रुप में से आई एम श्योर ज़्यादा नहीं तो 15 बच्चों का तो ज़रूर होगा, ठीक है। सो आप लोग, यू आर वेरी ब्रिलियंट पीपल, एंड यू मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू पीपल आर वेरी सिंसियर। सो उसी सिंसियरिटी को रख के रोज़ तैयारी करें और एमसीक्यू सॉल्व करें और हर टॉपिक को बार बार देखने की कोशिश करें, ठीक है। यू पीपल विल बी थ्रू, सो बेस्ट ऑफ लक। तो आज क्लास करें, इतनी काफ़ी है, ये ज़्यादा क्लास डीप तो गए नहीं हम, इट वॉज जस्ट इंट्रोडक्टरी आज के चैप्टर के लिए, बट आई थिंक इट इज़ गुड फॉर इंट्रैक्शन, लेट नाइट हमने इंट्रैक्शन तो कर ली, ठीक है सलीम, गुड। बाकी वाले, एंड आई एम ऑल्सो लो ऑन एनर्जी, मेरा ट्यूसडे को फास्ट होता है, सो आई एम लो ऑन एनर्जी, इसीलिए यू मस्ट बी, आपको मेरी आवाज़ भी बड़ी कम सी, सॉफ्ट सी लग रही होगी आज। इज देयर डिफरेंस इन माय वॉइस टुडे? अरे ऋषि, यू डोंट हैव टू बी सॉरी, सॉरी फॉर व्हाट, डोंट नो, बट साक्षी इज राइटिंग सर स्टैटिस्टिक्स इनके सॉल्व करने को भी आएंगे, मतलब साक्षी आप ये पूछ रहे हो कि ओके सलीम, आई एम डेफिनेटली आप सबके लिए प्रे करूंगा। साक्षी लिख रहे हैं कि ओके ऋषि, साक्षी ये लिख रही है कि स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने को भी आएंगे। साक्षी, स्टैटिस्टिक्स में जो आपको चैप्टर्स है उसमें से अगर क्वेश्चन आ सकता है तो वो मुझे लगता है सॉल्व करने को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी का एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर आपको स्टेट सेट थ्योरी में आ सकता है, आ, या उससे ज़्यादा मेट्रिसेस में आ सकता है। हाँ, नो नो साक्षी, फर्टिलिटी मोर्टेलिटी में आपको निकालना नहीं आएगा, कंसेप्ट पता होना चाहिए उसका, ठीक है। कोई नहीं ऋषि, मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, ओके। आपको मैथमेटिक्स में आएगा, मैं ये क्वेश्चन अगर आएगा ना,
मैट्रिक्स में आ सकता है सॉल्व करना, या सेट्स में आ सकता है, सेट में भी कुछ वो ज़्यादा है नहीं, ठीक है। सो डोंट वरी, आपको ये मोर्टेलिटी और ये फर्टिलिटी मैं पढ़ाऊंगा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें 3-4 वो हैं, आगे इंडेक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्रूड मोर्टेलिटी, क्रूड फर्टिलिटी रेट क्या होता है, ठीक है, या फिर एक वो है मैरिड फर्टिलिटी रेट, कुछ ऐसे इस तरह से है, जहाँ 2-3 और है, ज़्यादा टफ नहीं है, इज़ वेरी इजी। ठीक है गाइस, आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। Best of luck to all of you people, stay blessed and believe in yourself। सोने से पहले ये आंखें बंद करके इस तरह से ज़रूर बिलीव कीजिए कि that you are going to crack this exam। बिलीव मी, तैयारी से ज़्यादा आपको ये आपकी जो बिलीव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, या जाकिर, आई विल शेयर दिस PDF। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय।